Good morning everyone. So today we are going to do exercise 4.2. In this exercise the first question is give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. So first question is x minus 1 is equal to 0. Now x minus 1 is equal to 0. We will add 1 to both the sides of the given equation. Then we get x minus 1 plus 1 is equal to 0 plus 1. मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर बैलेंस इक्वेशन में हम दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करते हैं तो वो इक्वेशन बैलेंस ही रहती है. सो ऑन दैट बेसिस वी विल ऐड 1 ऑन बोथ द साइड्स. जब हम दोनों साइड्स में 1 ऐड करेंगे तो x माइनस 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0 प्लस 1. So this one and this one will be cancel out. Here we will have x and 0 plus 1 gave us 1. So in that way the value of variable x is 1. Now moving on to second part, x plus 1 is equal to 0. So now we subtract 1 from both the sides of the given equation. जब हम इसमें से दोनों साइड से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0 माइनस 1. यहाँ पर x की वैल्यू हमें माइनस 1 मिली. क्यों? क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गए हैं और 0 माइनस 1 में हमें क्या मिलेगा, माइनस 1. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट, x माइनस 1 इज इक्वल टू 5. सो हेयर वी हैव टू ऐड 1 ऑन बोथ द साइड्स. When we add 1 on both the sides, we will have x minus 1 plus 1 equal to 5 plus 1. 1 cancel out and the answer is 5 plus 1 6. So x is equal to 6. In that way we will solve all the rest of the questions of this question number or all the rest of the parts of this question 1. Okay. Now moving on to second question. Our second question is give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पर इक्वेशन आपको दी है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में. 3 इंटू एल इज इक्वल टू 42. नाउ हेयर वी विल डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 3. So when we divide both the side left hand and right hand side by 3 into L upon 3 will be equal to 42 upon 3. L is equal to 14. 3 will cancel out and when we divide 42 by 3 answer will be 14. So L is equal to 14. ये भी हमने पढ़ा हुआ है. मैंने आपको बताया था कि जब कोई बैलेंस इक्वेशन को हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स में तो हमें वो इक्वेशन बैलेंस ही रहती है. ओके. सो इन दैट वे वी विल फाइंड आउट द we can solve the equation and find out the answer of L, that is 14. Now moving on to next part, b upon 2 is equal to 6. So multiply on both the sides of the equation by 2. When we multiply the equation by 2, b upon 2 into 2 is equal to 6 into 2. So 2 will be cancel out and 6 2s are 12. So the answer of this question is b equal to 12. Now moving on to next part, the next part f is z upon 3 is equal to 5 by 4. So multiplying on both the sides of equation by 3. When we multiply on both the sides by 3, the 3 will be cancel out on the left hand side and the z is rest out. Now here we will have 5 by 4 into 3. So 5 3s are 15 divided by 4. This is the answer of the equation or this is the solution of the equation. Now moving on to third question. The question is same steps you will use to separate the variable and then solve the equation. So certainly we will going to solve the question. The question is 3n minus 2 is equal to 46. So पहले की तरह हम फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे, फर्स्ट वी विल ऐड 2 ऑन द बोथ साइड्स so that we can eliminate the 2 from this side. So we will add 3n minus 2 plus 2 is equal to 46 plus 2. So we will get 3n is equal to 48. Now we have 3 on left hand side. So remove 3 from left hand side. We will divide both the sides by 3.
So 3n upon 3 will be equal to 48 upon 3 and the answer is n is equal to 16. This is one way to solve this type of equation, and I told you another way to solve this type of equation. This is the second way. This is called transposing method. दिस इज़ कॉल्ड एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मेथड, जो मैंने आपको भी पहले बताया, और अब जो बताने जा रही हूँ इसको ट्रांसपोजिंग मेथड कहते हैं। क्वेश्चंस दोनों सेम हैं और हम इन दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसपोजिंग को जो तरीका होता है उसमें हम सबसे पहले वैल्यूज़ को लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं। सो फर्स्ट स्टेप जो होगा इसमें वो ये है, वी विल मूव -2 फ्रॉम द लेफ़्ट साइड टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। लेफ़्ट से राइट में ले जाएंगे। जब लेफ़्ट से राइट में ले जाएंगे, मैंने आपको बताया है व्हेन द साइड चेंजेस द साइन प्लस और माइनस गिवन ऑल्सो चेंजेस। अगर माइनस साइन दिया है डिजिट के आगे तो वो साइड चेंज होने पर प्लस का हो जाता है, और अगर प्लस साइन दिया है तो वो साइड चेंज होने पर माइनस का हो जाता है। जैसे 3n - 2 इज इक्वल टू 46। तो जब -2 अपनी साइड चेंज करेगा तो 3n विल बी इक्वल टू 46 + 2। सो 3n विल बी इक्वल टू 46 + 2 48। अब हमें ये एक इक्वेशन मिल गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल मूव 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अब हम 3 को लेफ़्ट से राइट में मूव करेंगे, लेकिन 3 प्लस या माइनस में नहीं है, 3 है n के मल्टीप्लिकेशन में। तो जब भी कोई डिजिट किसी वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवीज़न में जाता है दूसरी साइड में। मींस 3, हम इसको लिख सकते हैं 3n को 3 × n विल बी इक्वल टू 48। सो n विल बी इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई n, क्योंकि 48 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 n के मल्टीप्लिकेशन में है। अगर ये प्लस या माइनस की फॉर्म में होता तो हम जब इसको राइट हैंड साइड लेफ़्ट से राइट में ले जाते तो ये प्लस या माइनस साइन चेंज करके इधर आ जाता, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो ये डिवीज़न में आएगा। सो n इज़ इक्वल टू 48 upon 3, दैट विल बी इक्वल टू 16। सो हेयर आंसर इज़ n इज़ इक्वल टू 16। और जैसा मैंने आपको पहले मेथड में दिखाया था, यहाँ पर भी n इज़ इक्वल टू 16 ही आ रहा है। तो जो भी मेथड आपको सही और ईजी लगता है आप वो चूज़ कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इक्वेशन इज़ सॉल्व द क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन हैं। हमें इक्वेशन दी है 10 × p इज़ इक्वल टू 100। मैंने आपको बताया था जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो अगर साइड चेंज करता है तो डिवीज़न में जाता है। सो यहाँ से 10 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ से जब अपनी साइड चेंज करेगा राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीज़न में आएगा, यानी p इज़ इक्वल टू 100 upon 10। सो द आंसर इज़ p इज़ इक्वल टू 10। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ 10p + 10 इज़ इक्वल टू 100। अब देखिए ये तो प्लस के फॉर्म में है इक्वेशन में, लेकिन ये वाला 10 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम प्लस वाले को इधर लेके जाएंगे। सो 10 × p विल बी इक्वल टू 100 - 10। माइनस इसलिए क्योंकि जब प्लस या माइनस का साइन अपनी साइड चेंज करता है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है, क्योंकि ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। सो 10p इज़ इक्वल टू 90। अब देखिए 10 × p इज़ इक्वल टू 90 है, तो जब 10 मल्टीप्लिकेशन में होगा और साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये डिवीज़न में चला जाएगा। सो p इज़ इक्वल टू 90 upon 10 एंड द आंसर इज़ 9। नाउ सी पार्ट इज़ p upon 4 इज़ इक्वल टू 5। जब किसी भी इक्वेशन में इक्वल टू के राइट साइड में अपॉन में कुछ नहीं होता है तो हम उसके अपॉन में 1 मान सकते हैं या लिख सकते हैं। इससे हमारी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर p/4 आपको दिया है इज़ इक्वल टू 5 दिया है, तो अगर आप 5 में अपॉन 1 लिखते हैं तो इससे इस इक्वेशन पे कोई अंतर नहीं आएगा। सो उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। p/4 इज़ इक्वल टू 5/1। नाउ डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, p × 1 will be equal to 5 × 4. So the answer is p is equal to 20. Now rest of the questions solve yourself, and if you got stuck in any one question or any question, I will tell you in queries. Thank you.